Hello class 8 student. Today we will study about heat and temperature. In this topic we will first study about heat. What is heat and what is the SI unit of heat, how we can measure heat. Then student, about heat we can say that heat is a form of energy. हीट जो होता है एनर्जी का एक फॉर्म होता है और किसी भी सब्सटेंस को जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सब्सटेंस के अंदर हीट लेने के बाद इनका जो वाइब्रेशन है वो थोड़ा इंक्रीज कर जाता है. तो heat is a form of energy and when we provide the heat energy to any substance, the randomness, the vibration of molecules increases. If we want to measure the heat energy, then student, SI unit of heat energy is joule. Always keep in mind, since it is energy, hence SI unit is joule. CGS unit is erg. SI is joule and CGS unit is erg. You can say that in 1 joule there are 10 to the power 7 erg. This is the relation between joule and erg. One famous unit also which is named as calorie. In most of cases, commonly heat is measured in calorie in most of practical cases. But keep in mind, SI unit is joule. If the question is कि what is the international unit, then you say joule, and what is the most common unit, then you say calorie. There is also an important relation between calorie and joule, which is like this. In 1 calorie there are 4.2 joule and in 1 kilocalorie there are 4200 joule. You have to multiply by 1000. Kilocalorie means 1000 multiply. So this is the most common unit of heat. Next, in exam this type of question will also ask define 1 calorie. क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है कि डिफाइन 1 कैलोरी. तो 1 कैलोरी को कैसे डिफाइन करेंगे कि टोटल हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram of water. Keep in mind, through 1 degree Celsius. अगर आपके पास 1 ग्राम वाटर है और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो जितना हीट रिक्वायर्ड होगा दैट हीट इज नोन एज 1 कैलोरी. और यहां 1 kg कर देंगे तो ये 1 किलो कैलोरी हो जाएगा. तो 1 कैलोरी ज्यादा पूछा जाता है तो टोटल हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड. So these are the units of heat. Our next topic is temperature. Then student, temperature is some different from the heat. Temperature means what? Degree of hotness and coldness. How much a body hot or how much a body cold, it is determined by temperature. So you can say that temperature is a physical quantity
which gives degree of hotness or coldness. If we have two bodies at two different temperature, T1, T2, where T1 is greater than T2, and the bodies are comes in contact, then heat flows from A to B, and it is determined by the temperature difference. Bodies at higher temperature release the heat and body at lower temperature gain the heat. जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो हीट रिलीज करेगा और जिसका टेम्परेचर कम होगा वो हीट गेन करेगा. तो हीट का ट्रांसफर होगा हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर. तो आप ये भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी with which we can determine the direction of flow of heat. हीट ट्रांसफर किधर से किधर होगा ये भी आपको टेम्परेचर बताएगा. तो टेम्परेचर के बारे में दोनों चीजें कह सकते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस, और इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी with which we can determine the direction of flow of heat. And SI unit of temperature is Kelvin. टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है वो केल्विन होता है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल K. अनदर यूनिट्स आर डिग्री सेंटीग्रेड, degree Fahrenheit. In most daily life you can see most common unit is degree Celsius and degree Fahrenheit, but the SI unit is Kelvin. So always keep in mind units are so many but the SI unit is Kelvin. Now an important question is कि what is the difference between heat and temperature? Then first point is definition. Heat is a form of energy, while temperature is degree of hotness or coldness. Then first difference is definition. Heat is form of energy but temperature is degree of hotness or coldness. Second difference, international unit. SI unit of heat is joule, but the SI unit of temperature is Kelvin. And third difference is heat energy absorbed by substance depends on mass, material, and change in temperature. Three factors are there. Heat energy absorbed by substance depends on three things: mass, material, and change in temperature. But the temperature of body depends on only one factor: average kinetic energy of molecules. If average kinetic energy of molecules is more, it means temperature is also more, and average kinetic energy of molecule is less, it means temperature is also less. So these are the three differences. First, definition. Second, SI unit. And third, factor on which they are dependent. Then this is the difference between heat and temperature. अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर में तो हीट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे इफेक्ट ऑफ हीट. तो इफेक्ट ऑफ हीट में फर्स्ट है एक्सपेंशन. एक्सपेंशन मीन्स व्हाट? देन इफ यू प्रोवाइड हीट एनर्जी टू एनी सब्सटेंस, द मॉलिक्यूल्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि द रैंडमनेस, द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस.
जब आप किसी भी मटेरियल को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वाइब्रेशन इंक्रीज होता है, वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब जब वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे तो उनको स्पेस भी चाहिए, दे नीडेड मोर स्पेस। व्हाट आई एम सेइंग, व्हेन वी प्रोवाइड हीट एनर्जी to any substance, the amplitude of vibration of molecules increases. As a result, they need more space to sustain that vibration. They need more space to sustain that vibration. Hence, the material undergoes expansion for that more space. उस ज़्यादा स्पेस के लिए मटेरियल को क्या करना पड़ता है, एक्सपैंड, एंड दिस एक्सपेंशन इज नोन एज, एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज एक्सपेंशन. सो वन इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ हीट इज एक्सपेंशन, कि जब भी हम किसी मटेरियल को हीट देंगे उसके मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशन होगा उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए उसे ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो मटेरियल एक्सपैंड करने लगता है, एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज एक्सपेंशन, और यू कैन कंप्लीटली से थर्मल एक्सपेंशन, बिकॉज एक्सपेंशन इज ड्यू टू हीट. दिस एक्सपेंशन इज ड्यू टू हीट, हेंस you can completely say the phenomenon is known as thermal expansion. And student, we have three types of thermal expansion. First, linear expansion. Linear expansion means what? Let me suppose that you have a rod and you provide heat energy to this rod. Then the length of rod is increases due to this heat energy, and if there is increase in length, such expansions are known as linear expansion. Next one, superficial expansion. Or you can say that expansion in area. Then let me suppose that you have any plate in any shape, circular, cubical, square, rectangle, and you provide some heat energy to this plate. Then it increases its area. In the term of expansion, it increases its area, and this type of expansion is known as superficial expansion, expansion in area. And the last one is cubical expansion. If you have any three-dimensional object like cubical block, sphere, cuboidal block, cylindrical block, and you provide heat energy to this 3D object, three-dimensional object, then in term of expansion its volume increases, and this type of expansion is known as cubical expansion. So linear expansion when length increases, superficial expansion when area increases, and cubical expansion when volume increases. Then these all are the types of thermal expansion. अब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे.
अब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, तो अब एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोगों को पढ़ना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी। दीज आर द टू टर्म्स जो हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से होता है। तो फर्स्ट वी विल नो अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, व्हाट इज दिस एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोनों का एडवांटेज है। In some cases, the materials which are used must have high specific heat, but in some cases, such type of materials are used which have low specific heat. Then there are advantage of both type material. So we will study about that. Then student, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जो हीट एनर्जी होता है किसी भी सब्सटेंस के द्वारा जो एब्जॉर्ब किया जाता है, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एनी सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। Q is directly proportional to mass. Q means heat energy, M means mass. Means student, if a block is more massive, or you can say massive, more mass, then it also absorb more heat energy. And if a block have less mass, then it absorb less heat energy. तो मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ज्यादा मास ज्यादा हीट एनर्जी, कम मास कम हीट एनर्जी। सेकेंड वन, चेंज इन टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल rises more, it means it absorb more heat energy. If temperature of material not rises more, it means it absorb less heat energy. यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उतना ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, और जितना कम टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उतना कम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो Q is directly proportional to M and Q is also directly proportional to delta T, change in temperature. Delta T means change in temperature. This symbol is known as delta. ट्रायंगल जो बना हुआ है स्टूडेंट, इसको डेल्टा कहते हैं, जो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2. इफ वी कंबाइन बोथ इक्वेशंस, then our result in this format. Q is directly proportional to M and delta T, mass and change in temperature. And if we change this symbol in equal to, then keep in mind, whenever directly proportional sign change into equal to, we have to take a constant which is known as proportionality constant. जब भी प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल टू में चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट लेना होगा ऑलवेज। आप अभी क्लास 8 में हैं, यहां से याद कर लीजिए एकदम। इन 9th 10th एंड हायर क्लासेस इसका बहुत सारा यूज है कि जब भी प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल टू में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट लिया जाता है, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो उस कांस्टेंट के रूप में हम लोग यहां C लेंगे। M और डेल्टा T तो पहले से है हमारे पास, और कांस्टेंट के जगह पे हमने क्या लिया, C. एंड नाउ वी हैव अ फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हीट एनर्जी विच इज MC डेल्टा T, वेयर M इज मास, डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर, एंड C इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. And in this chapter it is known as a specific heat capacity. C is known as a specific heat capacity. So if these three things are given,
we can easily calculate heat energy. On the basis of this formula, 2 or 3 numericals in your chapter, and now you can solve the all 2-3 numericals. Mass, specific heat capacity, change in temperature. These 3 things are given and you have to calculate heat energy. So you can use this formula, Q is equal to mc delta T. M mass, C specific heat, delta T change in temperature. तो एक मैं करके दिखाता हूं न्यूमेरिकल इस पे, और बाकी जो बचेगा वो आप लोग करेंगे. Question is 5000 calorie of heat is supplied. Heat is given 5000 calorie. 5000 calorie heat is supplied to 1 liter of water. Volume is given 1 liter. Find the rise in temperature of water. We have to find delta T. This is the question number 1 of your book. Given a specific heat capacity is 1 calorie per gram per degree centigrade, and the density of water is 1 gram per cubic centimeter. Then student, in this question these things are given. मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्या गिवन है. क्वेश्चन में कह रहा है कि 5000 कैलोरी हीट इज गिवन टू 1 लीटर ऑफ वाटर. मीन्स कि आपके पास 1 लीटर वाटर है और आपने उसको कितना हीट दिया, 5000 कैलोरी. और 5000 कैलोरी हीट देने से कितना चेंज इन टेम्परेचर होगा ये बताना है. वाटर का स्पेसिफिक हीट और वाटर की डेंसिटी गिवन है. तो हम लोगों के पास फॉर्मूला है स्टूडेंट, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, और मुझे क्या निकालना है, डेल्टा टी. देखिए कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन. फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी और मुझे क्या निकालना है, डेल्टा टी. तो यहां से मैं इस पूरे टर्म को इधर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू mc और इधर डेल्टा टी बचेगा. तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे कि जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा वो Q डिवाइडेड बाई m इंटू सी. अब Q आपको पता है, C आपको पता है, अगर किसी तरह से m फाइंड हो जाए तो हम लोग निकाल लेंगे. तो m फाइंड करने का तरीका है स्टूडेंट, ये देखिए वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है, तो हम लोग 1 लीटर को 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर लिख सकते हैं. ये कन्वर्सन हो गया कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर. अब यहां पे इस फॉर्मूले को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो मास, तो आप लोग पढ़े हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, फर्स्ट और सेकंड दोनों में ये पढ़ना था. तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो यहां पे हम लोग मास के जगह पे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पुट कर देंगे. मास हमने हटा दिया और मास के जगह पे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटाएंगे. तो अब जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो हम लोग पुट करते हैं. तो Q 5000, डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम 1000 एंड स्पेसिफिक हीट ऑल्सो 1. देन स्टूडेंट आफ्टर कैलकुलेशन यू कैन गेट योर आंसर. डेल्टा T इज इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. तो ये क्वेश्चन था कि 5000 कैलोरी हीट दिया गया 1 लीटर वाटर को,
तो बताइए चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा। चलिए, अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग पढ़ लिए। तो यहां से मैं थोड़ा सा और एक बार आपको डिटेल में, जैसे Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी आया, तो C इज इक्वल टू Q बाई एम डेल्टा टी। तो कभी कभी ये कहता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी इसका डेफिनेशन भी बताइए। तो इसका डेफिनेशन होगा कि टोटल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to increase the temperature through 1 degree centigrade of unit mass is known as a specific heat capacity। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में आता है। टोटल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड SI यूनिट इज जूल पर kg पर केल्विन। दिस इज द SI यूनिट। यूनिट मास का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो जितना हीट चाहिए उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप अगर SI यूनिट में डिफाइन कर रहे हैं तो इसकी जगह 1 kg भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैसे यूनिट मास ही लिखिए। तो दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और फिर आपसे पूछेगा हीट कैपेसिटी, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों डिफरेंट है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी बोथ आर डिफरेंट। सुनने में तो एक जैसा लगता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी बोथ आर डिफरेंट टर्म। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मैंने कहा कि टोटल हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ यूनिट मास, लेकिन इसमें होगा कि टोटल हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ गिवन मास। इसमें यूनिट मास नहीं होगा। टोटल हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ, यूनिट मास बोल देंगे तो स्पेसिफिक हीट हो जाएगा, और गिवन मास बोल देंगे तो हीट कैपेसिटी हो जाएगा। इसका यूनिट जूल पर केजी पर केल्विन, लेकिन इसका यूनिट सिर्फ जूल पर केल्विन। एक तरह से देखिए डिफरेंस भी हो जा रहा है, इसका जूल पर केजी पर केल्विन, इसका जूल पर केल्विन। और ये डिपेंड करता है सिर्फ मटेरियल पे, जैसे वाटर का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, लेकिन ये मास और मटेरियल दोनों पे डिपेंड करता है। ध्यान रखेंगे, मास चेंज करने से भी चेंज करेगा और मटेरियल चेंज करने से तो चेंज कर ही जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है Q बाई एम डेल्टा टी, और इसका फॉर्मूला होता है Q बाई डेल्टा टी। और इन दोनों में एक रिलेशन भी है, C डैश इज इक्वल टू C इंटू एम। नोट कर लेंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मास। तो ये एक तरफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया और एक तरफ हीट कैपेसिटी हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, एडवांटेज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट।
क्या क्या एडवांटेज है, तो आपके बुक का ही बता दे रहा हूं मैं। फर्स्ट है वाटर इज यूज्ड इन रेडिएटर्स एंड कूलर्स बिकॉज इट एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इट्स टेम्परेचर चेंज इज नॉट वेरी हाई। कह रहा है कि वाटर का यूज ऐसे जगहों पे होता है जहां किसी चीज को ठंडा करना हो, जैसे रेडिएटर्स में होता है, कूलर में होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि वाई वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट इन रेडिएटर एंड कूलर्स। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट कि वाटर का स्पेसिफिक हीट हाई होता है। तो जिसका स्पेसिफिक हीट हाई होगा वो अपने टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाएगा, वो जल्दी गर्म नहीं होगा। तो इसीलिए वाटर को रेडिएटर में डाल दिया जाता है ताकि ये इंजन का सारा हीट भी एब्जॉर्ब कर ले और खुद ज्यादा गर्म ना हो। तो इंजन ठंडा भी हो गया और पानी ज्यादा गर्म भी नहीं हुआ। कूलर में यूज करते हैं ताकि बाहर से जो हॉट एयर आए, जब कूलर में जाए और वाटर से हो के पास करे तो वाटर उसका हीट एब्जॉर्ब कर ले और मुझे यानी जो कूलर के सामने है उसको ठंडी हवा मिले। और वाटर बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो देर तक आपको ठंडा हवा मिलते रहेगा। इसलिए एक बार आप कूलर में पानी भरते हैं तो 8-10 घंटे वो जो है आपको ठंडी हवा देता है, तो उसके हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से। तो याद रखेंगे कि ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर it is used as coolant at so many places. Some examples are radiator, cooler, etc. Water, second, water can retain heat for a very long time, so it is used in hot water bottles for fermentation. जब भी हम लोगों को, जैसे आप देखते होंगे एक वाटर बॉटल आता है लेदर का बना हुआ, हीट मेंटेन करने के लिए, तो उसमें गर्म पानी भर दिया जाता है। तो गर्म पानी इसलिए भरा जाता है कि जिस तरह से वाटर ज़्यादा हीट लेके भी जल्दी गर्म नहीं होता है, उसी तरह से अगर एक बार गर्म हो गया वाटर तो काफ़ी देर तक वो गर्म रहता है और हीट को भले वो लॉस कर रहा है लेकिन अपना टेम्परेचर वो बनाए रखता है। तो वाटर बॉटल्स में इसका यूज होता है। इसीलिए प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम frost if fields are filled with water as wet soil takes a long time to cool. खेतों में पानी भर दिया जाता है कोल्डर रीजन में ताकि जो पेड़ पौधे हैं वो बचे रहें, क्योंकि पानी भरा हुआ रहेगा तो पहले वो टेम्परेचर लॉस करेगा और प्लांट्स को बचाएगा, नहीं तो उसमें जो कैपिलरीज होती हैं अगर वो ठंडी हो गई, उसमें आइस बन गया वाटर, तो वो जो है बर्स्ट कर जाएगा और प्लांट्स जो है डेड हो जाएंगे। तो खेतों में पहले से पानी भर दिया जाता है ताकि